Hello, dear students. So, I'm back with the new topic of rainfed agriculture. So, in this particular video, we'll be dealing with aridity versus drought. It means the difference between aridity and drought. Then, we'll be dealing with the concept of drought and certain definition about it. And we'll also be discussing the types of drought in this video. So, without much ado, let us start our first topic. So now you see these two words, aridity and drought. They are basically used because of the insufficient water in a particular area. It means they are used for that particular aspect only. Though aridity and drought, they are due to insufficient water. But always remember this aridity word. It refers to a condition of deficiency of water due to either insufficient precipitation or excess water loss oversupply. And the term arid is derived from Latin word arere, which means dry. So it means, now you see जो term है aridity that has been derived from Latin word, ठीक है, जो एरेरे है उसका मतलब है ड्राई. सो बेसिकली जो एरिडिटी है इट इज़ अ परमानेंट क्लाइमेटिक फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. तो जो परमानेंट क्लाइमेटिक फीचर है एंड इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ओनली द लैक ऑफ रेनफॉल बट it is because of there are certain factors associated with it, and it is because of the culmination of number of long term processes. So you will find out in the next slide what I'm talking about. Then if you look at the drought particularly, the roots of the word drought came to us from Old English that lies in the ancient Germanic root drug. The word कौन सा है drug, which also fittingly gave us the English word dry. So it means your drought is a temporary condition. Your aridity was a permanent condition, but drought is a temporary condition that occurs for a short period of time due to deficient precipitation for vegetation, river flow, water supply, and human consumption. So here, what I'm stressing on is in drought the basic factor or the parameter which is responsible for the lack of water is the deficient precipitation. But in case of the aridity, there are number of factors or number of processes, long term processes that have been culminated, and because of those culmination, because of that culmination, that region is termed as arid. So let us take a look, let us take a look the differences between them. So you see, as I've already told you, the duration. Aridity is a permanent feature, but drought is a temporary condition of a scarcity of varying duration. But what are the factors related to it? In case of aridity, you see culmination of many long-term processes considers all the climatic features, but in case of drought, basically it is caused by deficient rainfall. Now, if we look at the aspect described, so in aridity, particularly we are stressing on the description of climate, but in case of drought, we are giving highlight or we are underlining the concept of water availability. Okay, so this is all about this is all about aridity and drought. Now moving on, let us talk about drought only. Now you see, there is no universal accepted definition for drought. हर जगह आपको ड्रॉट की जो डेफिनेशन है वो एक डेफिनेशन नहीं मिलेगी और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई भी डेफिनेशन नहीं है. Why is it so? Because you see the concept of drought, it varies from person to person, from institute to institute, from user to user. For an example, अगर एक फार्मर है उसके लिए ड्रॉट कब होगा? जब उसकी क्रॉप को पानी नहीं मिल पा रहा है. बट एट द सेम टाइम अगर एक लेमैन है जो कि सपोज करिए आपके घर में बैठे आपकी मम्मी है, आपके पापा है, आपके भाई बहन है, दोज हु आर नॉट इंडल्ज्ड इन द फार्मिंग एक्टिविटीज,
उनके लिए अभी पानी की कमी नहीं आई है, तो फॉर देम इट्स नॉट ड्रॉट, बट येस फॉर दैट फार्मर इट इज़ अ ड्रॉट. ओके. देन इसी तरह से अगर एक मेट्रोलॉजिस्ट की बात करें, तो अगर एवरेज रेनफॉल से, जो नॉर्मल रेनफॉल है उससे कम बारिश हो रही है, तो फॉर अ मेट्रोलॉजिस्ट दैट विल बी टर्म्ड एज ड्रॉट. May be that insufficient precipitation is fulfilling the water demands of the crop, so at that particular time the farmer will not face any kind of drought situation. So you see, as per the perception, or when user to user, this term varies. So let us talk about different definitions which have been given by different agencies or by different researchers. So you see, the early workers defined drought as a prolonged period without rainfall. तो जो भी अर्ली वर्कर्स थे उन्होंने ड्रॉट को बहुत ही सिंपली डिफाइन कर दिया कि कोई भी प्रोलॉन्ग पीरियड है विदाउट रेनफॉल, दैट विल बी टर्म्ड एज ड्रॉट. Then, according to Ramdas in 1960, he defined it like this: a drought is a situation when the actual seasonal rainfall is deficient by more than twice the mean deviation. कि ऐसी सिचुएशन जब एक्चुअल सीजनल रेनफॉल जो होगी वो आपके मीन डेविएशन से मोर देन ट्वाइस डेफिशिएंट होनी चाहिए. सो दैट situation for a particular area will be termed as drought. And you always remember, this is a location specific term. ठीक है, अगर ड्रॉट आपको डिफाइन करना है, इट हैज टू बी डिफाइन in terms of the area. Okay. Then you see the definition which was given by American Meteorological Society. It defined drought like this: a period of abnormally dry weather sufficiently prolonged for lack of water to cause a severe hydrological imbalance in the area affected. Now you again see area affected. तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि इट इज़ लोकेशन स्पेसिफिक. तो अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी क्या बोल रही है कि ऐसा पीरियड जो कि एबनॉर्मली ड्राई वेदर का हो और वो इतना सफिशिएंटली प्रोलॉन्ग कर जाए कि उससे आपका जो वाटर साइकिल है या जो हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाए. सो दैट विल बी टर्म्ड एज ड्रॉट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी. Then you see, the Irrigation Commission of India has also defined drought as a situation occurring in any area where the annual rainfall is less than 75% of the normal rainfall. तो अगर 75% से कम आपकी रेनफॉल होती है, तो यहाँ पर आपको जो कंपैरिजन करना है आपको नॉर्मल रेनफॉल से करना है. एंड यू मे आस्क मी कि नॉर्मल रेनफॉल क्या होगी एक पर्टिकुलर एरिया की. तो हमेशा याद रखिए कि हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस यूज़ यहाँ पर करते हैं जब भी हमको कंपैरिजन करना होता है एक पर्टिकुलर लोकेशन की रेनफॉल देखने के लिए. तो हम 30 ईयर्स का डेटा देखते हैं कि 30 ईयर्स में यहाँ का रेनफॉल पैटर्न कैसा रहा है. उस 30 ईयर्स के बेसिस पे हमको पता चल जाता है कि दिस इज़ द नॉर्मल रेनफॉल. एंड देन वी सी कि उससे कितना कम आपका इस बार बारिश हुई है. सो अकॉर्डिंगली अगर वो 75% से कम है, सो इट विल बी टर्म्ड एज ड्रॉट. ओके, सो दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म एवरेज. तो जब भी लॉन्ग टर्म एवरेज की बात होती है हम 30 ईयर्स के डेटा की बात करते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस. तो ये पूछा भी जाता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में. ओके. एंड एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू रामदास कि मोर देन ट्वाइस ऑफ मीन डेविएशन है या स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ऑलवेज रिमेंबर कि मीन डेविएशन है. वहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे मे गिव यू स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड अदर डेविएशंस इन दी ऑप्शंस. एंड ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, उसके ऑप्शंस उसको हार्ड बनाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस. ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं एक टिप दे रहा हूँ. Now moving on, let us talk about the classification of drought. So your drought can be classified based on duration, based on the nature of users. It can be defined or classified based on time of occurrence, and then by using some specific terms. So let us take them one by one. So first of all, we'll be dealing based on your duration. So on the basis of your duration, your drought has been classified into 4 categories. So let us take them one by one. The first category is permanent drought. So as the name indicates, permanent drought, it means it is a characteristic of the desert climate
where sparse vegetation growing is adapted to drought and agriculture is only possible by irrigating the entire crop season. तो जहाँ पर ऐसा क्लाइमेट है जो डेजर्ट क्लाइमेट है, या आप कह सकते हैं इस तरह को एक तरह से हम एरिडिटी ही मान सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जो डेजर्ट क्लाइमेट है वहाँ पर आपका ज़्यादा पानी होगा ही नहीं, और इसीलिए वहाँ पर जो वेजिटेशन भी होगी वो बहुत ही स्पार्स होगी, बहुत ही फ्लरिश वे में वो नहीं होगी, फ्लरिश नहीं होगी, बट स्पार्स वेजिटेशन होगी वहाँ पर। एंड वही स्पार्स वेजिटेशन आपकी अडेप्ट कर चुकी होगी आपके ड्रॉट को, और अगर आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करनी है वहाँ पर, देन यू मस्ट इंश्योर कि वहाँ पर इरिगेशन हो ड्यूरिंग द एंटायर क्रॉप सीजन, क्योंकि पूरे सीजन में वहाँ पर बारिश नहीं होगी। So always remember it is a permanent one. Then you see the seasonal drought. So again the name indicates seasonal. So this is found in climates with well-defined rainy and dry seasons. So most of the arid and semi-arid zones they fall in this category. तो जितने भी arid और जितने नहीं ज़्यादा सतर जो आपके arid और semi-arid zones है, they fall in this category. And duration of the crop varieties and planting dates are managed in such a way that the growing season should fall within the rainy season. तो अब हमको पता है कि सीजनल ड्रॉट में हमको पता चल जाएगा कि कुछ सीजन में आपका, एक सीजन में आपकी रेनी सिचुएशन रहने वाली है और एक सिचुएशन में ड्राई सीजन रहने वाला है, ठीक है। तो हमेशा वहाँ के फार्मर्स या जो भी क्रॉप प्लानर्स होते हैं वो ये पहले से ही इंश्योर कर लेते हैं कि हमारी जो प्लांटिंग डेट्स हैं, जो हमारी क्रॉप वेराइटीज़ की प्लांटिंग डेट्स हैं, वो हमेशा रेनी सीजन में ही पड़नी चाहिए, क्योंकि रेनी सीजन में हमारे पास सफिशिएंट वाटर वहाँ पर होगा, ठीक है, और ड्राई सीजन में हम फैलो छोड़ सकते हैं। ओके, देन मूविंग ऑन, द थर्ड टाइप ऑफ दिस ड्रॉट इज योर कंटिंजेंट ड्रॉट. So you see the contingent in the English term is known as accidental. Okay, तो आपको पता है एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, ये कभी कोई प्री प्लान नहीं होता है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है. ओके, सो लाइक अभी हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, सो हमें नहीं पता था कोरोना वायरस आएगा और इतना बड़ा पेंडेमिक क्रिएट करेगा. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कंटिंजेंट पेंडेमिक, ठीक है. तो इसी तरह से जो कंटिंजेंट ड्रॉट है, इट इन्वॉल्व्स एन अबनॉर्मल फेलियर ऑफ रेनफॉल, कि मतलब एक एरिया में रेनफॉल अच्छे खासी हो रही है बट कभी कभार अबनॉर्मली फेलियर हो जा रहा है रेनफॉल. सो इट मे अकर ऑलमोस्ट एनीवेयर, कहीं पर भी हो सकता है, स्पेशली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमिड और सब ह्यूमिड क्लाइमेट्स, एंड इट इज़ यूजुअली ब्रीफ, इरेग्युलर एंड जनरली अफेक्ट्स ओनली अ स्मॉल एरिया. तो बहुत ही छोटा भी हो सकता है, इरेग्युलर है, और जनरली इट अफेक्ट्स ओनली अ स्मॉल एरिया, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंटिंजेंट ड्रॉट. तो हम इसको एक्सीडेंटल ड्रॉट भी बोल सकते हैं अपने सहूलियत के लिए. ओके, नाउ द लास्ट वन इज इनविजिबल ड्रॉट, जो दिखाई ना दे बट यस इट इज अ ड्रॉट. और ऑलवेज रिमेंबर कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था व्हेन आई गेव माय फर्स्ट नेट एग्जामिनेशन, कि इनविजिबल ड्रॉट बेसिकली कौन से रीजन्स में होते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर ह्यूमिड रीजन्स में होते हैं, जो कि मैंने हाईलाइट भी किया है यहाँ पर. बट चलिए देखते हैं इनविजिबल ड्रॉट आखिर है क्या. सो इनविजिबल ड्रॉट कैन अकर इवन व्हेन देयर इज अ फ्रीक्वेंट रेन इन एन एरिया. तो अगर आपके एक एरिया में फ्रीक्वेंटली रेनफॉल हो भी रहा है तो भी आपका वहाँ पर इनविजिबल ड्रॉट अकर हो सकता है. तो होता क्या है इस केस में, व्हेन योर रेनफॉल इज इनएडिक्वेट to meet the evapotranspirational losses, and it results in a borderline water deficiency in soil resulting in less than the optimum yield. तो होता क्या है कि रेनफॉल हो रही है बट वो रेनफॉल सफिशिएंट नहीं है कि जो आपके क्रॉप की ईटी डिमांड है उसको पूरी तरीके से फुलफिल कर पाए. तो इसमें क्या होएगा कि एक बॉर्डर लाइन वाटर डेफिशिएंसी डेवलप होती है, जो कि हमको शायद पता भी नहीं चलती देखने में, कोई सिम्टम्स भी नहीं आते, विल्टिंग सिम्टम्स भी नहीं आते, बट अल्टीमेटली यस, जब उसका जो पोटेंशियल ईल्ड है, जो उसकी ऑप्टिमम ईल्ड है, उससे थोड़ी कम ईल्ड हमें मिलती है, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज इनविजिबल ड्रॉट. सो बेसिकली इट अकर्स इन द ह्यूमिड रीजन्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस. और ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट एग्जामिनेशन में. ओके, so this is all about based on the duration. Now moving on, let us discuss based on the nature of the users. So according to the National Commission of Agriculture 1976, okay, you see it has been further divided into 4 categories. So let us
talk about them one by one. The first one is meteorological rod. So now, as the name indicates, meteorological. So here we are considering the meteorological factors. So basically it is defined as a condition where the annual rainfall is less than the normal over an area for prolonged period. ओके तो बस सिंपल जहाँ पर आपकी एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो नॉर्मल से कम हो रही है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, और वो पीरियड आपका मे बी अ मंथ और अ सीजन और अ ईयर. Okay, so that is known as meteorological drought. Now see, the another one is atmospheric drought. So atmospheric drought, it means it is due to the low air humidity. It is because of the low air humidity frequently accompanied by hot dry winds. तो suppose करिए कहीं ऐसी कोई area है जहाँ पर already humidity बहुत less है, and when I refer to humidity I talk about the moisture content of the air. ओके तो अगर एयर में पहले से ही मॉइस्चर कंटेंट कम है एंड देन इट इज अकम्पनीड बाय हॉट ड्राई विंड्स जिनको हम लू भी बोलते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होएगा आपका एटमॉस्फेरिक ड्रॉट हो जाएगा. सो इट मे अकर इवन अंडर कंडीशन ऑफ एडिक्वेट अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर. तो अगर आपके सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल है भी, लेकिन हियर वी आर हाईलाइटिंग द फैक्ट कि आपके एटमॉस्फेयर में कितनी मॉइस्चर है. Okay, so it refers to a condition when plants show wilting symptoms during the hot part of the day. तो जब बिल्कुल ज़्यादा गर्मी होती है दिन में, ठीक है, तो उस समय आपके प्लांट्स क्या कर सकते हैं, विल्टिंग सिम्टम्स शो कर सकते हैं. और when your transpiration exceeds the absorption temporarily for a short period. तो यहाँ पर क्या होगा कि शॉर्ट पीरियड के लिए जो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हॉट हॉटनेस बहुत ज़्यादा है, तो जो आपका ट्रांसपिरेशन है वो एक्सीड कर जाएगा एब्जॉर्प्शन रेट से. तो पानी जितना ले नहीं पा रहा है सॉइल से, उससे ज़्यादा लॉस हो जा रहा है, एंड दैट्स वाई दैट फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन योर प्लांट्स कैन शो विल्टिंग सिम्टम्स. एंड when decreases absorption keeps pace with the transpiration and plants revive. तो इसी को हम मिड डे विल्ट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि सिर्फ हॉटेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द डे में ही ये पाई जाती है. अदरवाइज ड्यूरिंग द नाइट टाइम योर प्लांट्स कैन रिवाइव इजीली. ओके, देन मोर ओवर नाउ लेट अस टॉक ऑफ द थर्ड टाइप, दैट इज द हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट. तो सिंपल, जब आपका मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट प्रोलॉन्ग कर जाए, कब काफ़ी लंबे समय तक खिंच जाए, तो इट रिजल्ट्स इनटू द हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट. तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो सरफेस वाटर होगा उसका डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगा. सो मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट व्हेन प्रोलॉन्ग्ड रिजल्ट्स इन हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट विद द डिप्लीशन ऑफ सरफेस वाटर and consequently the drying of the reservoirs, your tanks and other water bodies. So it results in the deficiency of water for all the sector using water. तो जब हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट आएगा तो हर किसी को पता चल जाएगा कि यस, पानी की कमी आ चुकी है. Why? Because it results in the deficiency of water for all the sectors. जो भी sectors आपका पानी यूज कर रहे हैं उन सब के लिए होएगा. So this is based on water balance and how it affects irrigation as a whole for bringing crops to maturity. Okay, then let us talk the last type of this category, agricultural drought. Now you all belong to agriculture stream, तो बिल्कुल आपको clear हो जाएगा that it is the result of soil moisture stress due to the imbalance between available soil moisture and evapotranspiration of a crop. तो देखिए, पहले जब हम एटमॉस्फेरिक की बात कर रहे थे, आप वरना कंफ्यूज कर जाएंगे, तो वहाँ पर हम बिकॉज ऑफ दी low humidity, air humidity accompanied by what, the dry winds. बट हेयर यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉइल मॉइस्चर ही आपका क्या है, डिक्लाइन कर गया है. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस. तो उस सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस की वजह से इट गिव्स राइज टू इम्बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड ईटी डिमांड ऑफ अ क्रॉप. तो अगर ईटी नहीं आपका फुलफिल हो पा रहा है, डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो ड्राई मैटर प्रोडक्शन आपका नहीं होगा आपके क्रॉप में, तो आपकी क्रॉप सफ़र करेगी. बट एग्रीकल्चर ड्रॉट जो होता है वो यूजुअली ग्रेजुअल होता है और प्रोग्रेसिव नेचर का होता है. ऐसा नहीं है कि एकदम आया और एकदम सब कुछ खत्म कर दिया. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगर ऐसा होता तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता. सो द प्लांट्स कैन देयरफॉर एडजस्ट एटलीस्ट पार्टली टू द इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस. ठीक है, सो दिस सिचुएशन अराइजेज एज ए कॉन्सिक्वेंसेज or as a consequence of scanty precipitation or its uneven distribution both in space and time.
तो ये किसकी वजह से हो सकता है, या तो आपकी जो प्रेसिपिटेशन है वो स्कैंटी हो, मतलब बहुत ही कम हो रही हो, और या फिर अगर हो भी रही है तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कि एक बारी में बहुत ज़्यादा हो गई, एक बारी में बिल्कुल भी नहीं, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। चाहे वो टाइम की बात करें, मतलब कि सपोज करिए अगर 6 महीने का मानसून है और सिर्फ 1 महीने में ही आके चला गया, तो वो वहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है टाइम में। लेकिन सपोज स्पेस की है कि एक ही जगह पर सारा का सारा बरस गया, ठीक है, सो इट इज़ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्पेस। सो इसी ड्रॉट को हम सॉइल ड्रॉट भी बोलते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, and still if you have any confusion you can ask me in the comment section. Now moreover, let us talk about the third classification, that is based on the time of occurrence. It is very easy and there is no rocket science to deal with it, तो आप डायरेक्टली समझिए अर्ली सीजन ड्रॉट. So it occurs due to delay in onset of monsoon or due to long dry spells after early sowing. तो सपोज करिए आपको मानसून जो है वो डिले हो गया है, तो डिले हो गया है, या फिर आपका अर्ली सोइंग की आफ्टर अर्ली सोइंग आपने क्या करा, सोइंग करी और उसके बाद लॉन्ग ड्राई स्पेल्स आ गए, तो क्या होगा कि जो आपका क्रॉप का अर्ली सीजन है दैट विल बी अफेक्टेड. तो इसी को हम अर्ली सीजन ड्रॉट बोलते हैं. Then mid-season drought, it means it occurs due to the long gaps between two successive rains and stored moisture becoming insufficient during the long dry spell. तो it means बारिश हो चुकी थी, तो अब बारिश दो सक्सेसिव रेन्स के बीच में अगर लॉन्ग गैप हो जाए, ठीक है, और आपका देर इज अ शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर, सो आपका जो मिड सीजन है दैट विल बी अफेक्टेड. सो इट इज नोन एज मिड सीजन ड्रॉट एक्चुअली. देन late season drought, so it occurs due to the early cessation of the rainfall and crop water states as the maturity stage. तो इसका मतलब है मॉनसून सपोज टाइम आपका टाइम पे आया या बहुत जल्दी आ गया, लेकिन जल्दी खत्म हो गया. तो मेन यहाँ पे रीजन क्या है कि बिकॉज ऑफ द अर्ली सेसेशन ऑफ द रेनफॉल, कि जो रेनफॉल लंबी चल रही थी वो जल्दी क्या हो गई, खत्म हो गई, एंड आपकी मेच्योरिटी के स्टेजेस पे आपके क्रॉप का क्या हो रहा है, आपको वाटर स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है. सो दैट इज नोन एज लेट सीजन ड्रॉट. सो दिस इज वेरी सिंपल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द different terms, like other terms which also describe some other kinds of droughts as well. So first one is relative drought. Relative drought को ही हम apparent drought भी बोलते हैं, always remember. ठीक है, किसी किसी बुक्स में सिर्फ relative दिया है, किसी में apparent दिया है, तो always remember both are synonyms. तो the drought for one crop may not be a drought situation for another crop. तो सिंपल से समझिए कि आपके लिए जो ड्रॉट है शायद मेरे लिए ड्रॉट ना हो, तो दैट इज वाई इट इज रिलेटिव. तो एक सिचुएशन जो कि एक क्रॉप के लिए ड्रॉट है मे बी नॉट अ ड्रॉट सिचुएशन फॉर अनदर क्रॉप. ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ मिसमैच बिटवीन द सॉइल मॉइस्चर कंडीशन एंड क्रॉप सेलेक्शन. ठीक है, तो सपोज करिए अगर राइस है, a condition may be a drought situation for growing rice, but at the same time that may not be a drought for growing groundnut. Simple. तो जब आपकी that rice needs lot of water to cultivate, अगर मैं उसी के टाइम पर कोई ऐसी क्रॉप ले लूँ जो कि आपकी हार्डी नेचर की है और उसको वाटर की इतनी डिमांड नहीं है, तो एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपके मिलेट्स कैन इजीली ग्रो. तो उन मिलेट्स के लिए क्या होएगा, ड्रॉट सिचुएशन नहीं होगी, बट राइस के लिए होगी. यस, ओके. सो अ ड्रॉट फॉर अ पर्टिकुलर सॉइल, लाइक अगर ब्लैक सॉइल के लिए ड्रॉट है तो इट मे नॉट बी अ ड्रॉट फॉर रेड सॉइल. सो डिफरेंट सिचुएशंस में एक जो ड्रॉट सिचुएशन है वो दूसरे सिचुएशन में शायद ड्रॉट ना हो, उसी को हम रिलेटिव ड्रॉट बोलते हैं. सिंपल. नाउ फिजियोलॉजिकल ड्रॉट. सो सपोज करिए आपका पानी अवेलेबल है, अच्छा खासा आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, इवन दो आपके प्लांट्स क्या कर रहे हैं, विल्टिंग शो कर रहे हैं. सो देर इज there is wrong with the physiology of the plants. तो physiological drought में होता क्या है, it is a condition where the crops are unable to absorb water from the soil even when water is available. ठीक है, तो पानी तो है, पानी होने के बावजूद भी आपके जो क्रॉप्स हैं पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, and it may be because of numerous factors. तो mainly किसकी वजह से हो सकता है, because of the high osmotic pressure of the soil solution due to the increased soil concentration. तो alkalinity या salinity, अगर आपकी salt concentration बहुत ज़्यादा हो गई आपके सॉइल में, तो उस केस में आपका क्या होगा, एक्सॉस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा. जो प्लांट है
वो अपना पानी बाहर की तरफ छोड़ना शुरू करेगा rather than absorbing it, तो wilting शो करेगा. Okay, because of the concentration gradient. Okay, तो and you know that water moves from higher water potential to the lower water potential. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्लांट का वाटर पोटेंशियल है वो आपका हाई हो जाएगा और जो सॉइल का है वो लो हो जाएगा. सो इट मूव्स फ्रॉम हाई टू लो. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस. तो एक एल्केलिनिटी और सैलिनिटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स. देन अगर वाटर लॉगिंग सिचुएशन है सपोज करिए, तो वाटर लॉगिंग सिचुएशन में क्या होगा, आपकी प्लांट की जो रूट्स हैं उनकी एक्टिविटी डैमेज हो जाती है. और अगर रूट ही डैमेज हो गई आपकी तो फिर प्लांट के लिए पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा. तो पानी होते हुए भी एक्सेस अमाउंट में पानी है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो लीथल फॉर द प्लांट्स. तो वहाँ पर भी फिजियोलॉजिकल ड्रॉट आ जाएगा. समटाइम्स बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ द pH डेविएशन. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर लॉगिंग में कैसे हो सकता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, वाटर लॉगिंग में होता क्या है कि अनॉक्सिया या हाइपोक्सिया कंडीशंस अराइज हो सकती है. तो अनॉक्सिया मीन्स कि कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड हाइपोक्सिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. और दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है प्लांट को. वहाँ पर होगा क्या कि आपके एनारोबिक सिचुएशंस की वजह से जब ऑक्सीजन नहीं है, आपका सिर्फ पानी पानी है आपकी सॉइल में, तो फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होता है. तो आपकी ऑक्सीजन की जो रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की रिएक्टिव स्पीशीज़ आपकी बननी शुरू हो जाती हैं. और वो क्या करती है, दीज आर वेरी टॉक्सिक फॉर द प्लांट रूट्स. तो वो अटैक करना शुरू करती हैं. उनकी सेल मेम्ब्रेन, उनकी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको क्या करती हैं, ब्रेक डाउन करना शुरू करती हैं. एंड देयर आर नंबर ऑफ रीजंस कि आपका बिकॉज ऑफ दिस आपकी जो रूट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, या तो काम करना छोड़ देती हैं, उनकी एक्टिविटी हैम्पर होती है. इन दैट केस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डे एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा. एंड स्टिल इफ देर इज कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर, comment and subscribe my YouTube channel Agri Tutorial, and do not forget to press the bell icon. So this is all for the day. Thank you very much students and all other aspirants who are preparing for their competitive examinations. Thank you very much once again.